Question number 51. GG Limited manufactures and sells an equipment called purifier. The cost data for each batch of 10 numbers of water purifier is as follows. We have 5 kinds of products, 5 kinds of purifiers, जिनका हमें detail दिया है. So you can see there are machine hours given for ABC, whereas labor hours given for D and E. मतलब ABC मशीन से बनता है, D और E लेबर इंटेंसिव है. वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एज अपोर्शन्ड. Assembly costs, which are all variable, is rupees 50 per batch. So this is incurred, this 50 rupees is incurred over the entire batch. Product है water purifier, उसके ये 5 component हैं, A, B, C और C, D and E. These are the 5 component. इन पांचों को मिला के assemble किया जाता है, for which 50 rupees per batch is paid. And it's given that one batch has 10 purifiers. एक batch में 10 purifier है. Then selling price is 800 rupees per batch. Maximum available machine capacity for making components A, B and C is 10,800 hours and it cannot be increased further. Maximum capacity हमें given है for A, B and C. Machine capacity है ये, D और E पे applicable नहीं है. Labor is available for making components D and E and for assembling the product. Labor में there is no shortage. Estimated increase in demand next year is 50% and the fixed cost in general may increase by 10,000. So there is an increase in demand. 50% से हमारी overall demand बढ़ रही है. So all the components का manufacture बढ़ जाएगा. Water purifier की demand बढ़ रही है, तो उसके सारे components हमें ज़्यादा बनाने पड़ेंगे. And fixed costs are also increasing. In order to increase the production capacity to meet increased market demand, the company decided to purchase one of the machine-made components. कंपनी ने डिसाइड किया क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है जबकि डिमांड बढ़ रही है. दैट्स व्हाई व्हाट कंपनी हैज सॉट इज मशीन मेड जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दैट इज ए, बी एंड सी, विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग मशीन, उनमें से किसी एक का वो परचेज कर लेंगे. कोई एक वो लोग बनाने की जगह परचेजिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे. Court Limited is the only supplier of components A, B and C. Because of incomplete records, it is unable to quote single figure prices. Its quotation is as follows. उसने हमें 3 views, pessimistic, most likely और optimistic view में अपना quotation दिया है. Probabilities as well as the prices are given. It is agreed between the companies that the price of each of the component will be determined on an overall basis based of information found in the quotation. From the above, you are required to indicate in the context of key factor the maximum number of batches that could be produced if each of the 3 alternatives, namely buying A or B or C is considered. अभी बोला है की फैक्टर जो हमारा ये मशीन आज है उसको ध्यान में रख के आप फाइंड करो कि ज्यादा से ज्यादा हम कितने बैचेस बना सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस ऑफ वाटर प्योरीफायर्स विच वी कैन प्रोड्यूस with all the 3 options in mind. पहला ऑप्शन आप A बाहर से खरीदोगे. बाइंग के ऑप्शंस हैं वो बाइंग A और B और C. जो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए इसके पहले कि हम एक ही बनाए आउट ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स इफ वी गो ऑन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, वैसा नहीं है. अब हम एक खरीदने की बात कर रहे हैं. सो इफ वी आर गोइंग टू बाय A, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस B and C. If we are going to buy B, we are going to produce A and C. And if we are going to buy C, we are going to produce A and B. So how many units we can make or how many batches can be made by in all the 3 alternatives. Second, analyze the financial implication of purchase and advise which components is to be bought, keeping in view the fact that production capacity will be limited to a 50% increase. अभी बोला है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ परचेज एंड एडवाइस विच कंपोनेंट्स इज टू बी बॉट. डिमांड में 50% ही इंक्रीज हो रहा है. हमें क्वांटिटी जो भी प्रोडक्शन है वो 50% से ही बढ़ाना है क्योंकि डिमांड उतनी बढ़ रही है, तो हमें भी अपनी क्वांटिटी प्रोड्यूस उतनी ही बढ़ाना है. उसको ध्यान में रखते हुए आप ये बताइए कि परचेज करने का एडवाइस विच कंपोनेंट इज टू बी बॉट, परचेज करने से कितना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, कॉस्ट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा. देन थर्ड, प्रिपेयर अ प्रॉफिट statement for the period assuming that the component chosen by you
is bought out and extra production is made and sold. तीसरा हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, ये मान के कि जो कंपोनेंट हमने चूज किया वो खरीद लिया गया और जितना भी एडिशनल प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा हमने बेच दिया. सबसे पहले तो you have to find out or you have to start with the first one or at least find the expected prices. आपको जो मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है, फाइंड द एक्सपेक्टेड प्राइसेस फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स. जो कोट लिमिटेड ने हमें कोटेशन दिया है तीनों प्रोडक्ट का, तीनों कंपोनेंट का आप एक्सपेक्टेड प्राइस निकालिए. Simply you will multiply the prices with probabilities और उनका summation ले लेंगे. So we have for A 120, 110 and 80. So what will be the expected price for A? 105. Similarly for B you will calculate 200 into 0.25 plus 130 into 0.5 plus 140 into 0.25. कितना होगा? 150. And for C 140. These will be the expected prices. अब पहले पार्ट में हमें बोला है की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप ये बताओ कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस बनाए जा सकते हैं तीनों ऑल्टरनेटिव्स में. ये ध्यान रखना एक बैच जो बन रहा है उसमें 10 वाटर प्योरीफायर्स बन रहे हैं. ओके, एंड द कंपोनेंट्स गिवन दे आर नॉट डिस्टिंक्ट देन वाटर प्योरीफायर्स. अगर आपको 10 वाटर प्योरीफायर बनाने हैं इसका मतलब आपको 10 यूनिट्स ए के चाहिए, 10 यूनिट्स बी के चाहिए और 10 यूनिट्स सी के चाहिए. Okay, so when we say that we are producing one batch of water purifier, we will always need 10 units of A, 10 units of B and 10 units of C per batch of water purifiers. आपको दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एक बैच का ही कॉस्ट दिया है इनिशियल क्वेश्चन में. द कॉस्ट डेटा फॉर ईच बैच ऑफ 10 नंबर ऑफ वाटर प्योरीफायर इज एज फॉलोज. वो जो कॉस्ट दिया हुआ है वो भी 10 यूनिट का ही दिया हुआ है, एक बैच का ही दिया हुआ है. ओके, एक बैच बनाने में आपको ए के लिए 20 मशीन आवर्स, बी के लिए 28 मशीन आवर्स और सी के लिए 24 मशीन आवर्स लगते हैं. मतलब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए हमें चाहिए 50% इंक्रीज इन डिमांड. हमें ये नहीं दिया है कि आगे जाके कितने होंगे यूनिट्स या कितने बैचेस बनाने हैं, हमें सिर्फ ये दिया है करंट से 50% बढ़ जाएगा. करंट का कितना है वो भी हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. कहीं दिया है क्या करंट प्रोडक्शन? करंट प्रोडक्शन कितने बैचेस का है वो फिगर भी हमें डायरेक्टली नहीं दिया है. हमें सिर्फ ये दिया है एक बैच बनाने के लिए आपको ए के लिए 20 आवर्स, बी के लिए 28 और सी के लिए 24 आवर्स लगते हैं और टोटल आपकी कैपेसिटी है 10,800 आवर्स की. अभी तक हम 100% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं. वैसे तो स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कहीं पर भी, सिर्फ ये लिखा है कि कैपेसिटी इससे नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी. कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो हम यही मानेंगे कि हम पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करके अभी काम कर रहे होंगे. इसलिए आगे जाके जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा कैपेसिटी शॉर्टेज हमें हो जाएगी. एक बैच प्रोड्यूस करने के लिए मतलब हमें टोटल मशीन आवर्स कितने लगेंगे? ए के लिए 20, बी के लिए 28 और सी के लिए 24. सो वी कैन से total machine hours required per batch. पूरा एक बैच अगर हमें बनाना है वाटर प्योरीफायर का तो ए बी सी तीनों ही हमें बनाने पड़ेंगे. मतलब उसमें टोटल टाइम लगेगा 20 + 28 + 24 दैट इज
72 मशीन आवर्स लगेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 बैच। हमारे पास टोटल अभी तक कितने मशीन आवर्स है? कैपेसिटी इज 10,800 आवर्स। क्या हुआ बोलो ना? मैक्सिमम कैपेसिटी इज 10,800 आवर्स और एक बैच बनाने के लिए हमें 72 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो हाउ मेनी बैच वी मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट प्रेजेंट? जब हम ये पूरी कैपेसिटी में सारे ही कंपोनेंट्स खुद ही बना रहे हैं, तो प्रेजेंटली हम कितने बैचेस बना रहे होंगे? प्रेजेंट प्रोडक्शन इन बैचेस वी मस्ट बी प्रोड्यूसिंग 150 बैचेस। अब क्या हो रहा है? 50% से हमारी डिमांड बढ़ रही है। 150 बैचेस मतलब इतने ही आपको ए के यूनिट्स, इतने ही बी के और इतने ही सी के यूनिट्स भी चाहिए। नाउ द डिमांड इज इंक्रीजिंग बाय 50%। इंक्रीज इन डिमांड इज 50%। तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर में हमें कितनी डिमांड हो जाएगी? करंट में इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50% से ये बढ़ रहा है। सो वी कैन से नेक्स्ट ईयर में 225 बैचेस हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओके लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, डिमांड है 225 बैचेस की। सो नाउ वी हैव टू गिव, फर्स्ट वाले पॉइंट में बोला है की कॉन्स्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए, की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए तीनों ऑप्शन आपको कंसिडर करने हैं। अगर हम ए खरीद लें तो, अगर बी खरीद लें तो, अगर सी खरीद लें तो, इन ऑल द 3 ऑप्शंस यू हैव टू गिव मैक्सिमम कितने बैचेस हम रन कर सकते हैं। So we have different options. Option to buy A, या तो आप A खरीदो या B खरीदो या फिर C खरीदो। अगर हम A खरीद लेते हैं तो B और C हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेंगे। कितने मशीन आवर्स लगेंगे? मशीन आवर्स पर बैच। इफ वी आर परचेजिंग A, so we are मैन्युफैक्चरिंग B एंड C, उसमें कितने घंटे लग जाएंगे हमें एक बैच बनाने में? कितना? एक बैच बनाने में कितने घंटे लगेंगे B और C के लिए? क्या कर रहे हो? 6,300 कहां से आया? एक बैच बनाना है, एक बैच B का और एक बैच C का 28 प्लस 24, दैट इज 52 आवर्स। अगर हम ए खरीदने का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो एक बैच बनाने में हमें 52 आवर्स लगेंगे। कैपेसिटी है टोटल 10,800 आवर्स की। कितने मैक्सिमम पॉसिबल है बैचेस बनना? मैक्सिमम पॉसिबल बैचेस इन 10,800 आवर्स। कितने बना सकते हैं? 208 ही बन पाएंगे, जबकि रिक्वायरमेंट है 225 बैचेस बनाने की। तो इवन इफ आप ए बाहर से खरीद लो, आप अपनी पूरी डिमांड फुलफिल यहां नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम बी बाहर से खरीदने का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वील बाय बी, सो वील मैन्युफैक्चर ए एंड सी। ए बनाने में लग रहा है 20 आवर्स और सी बनाने में लग रहे हैं 24 आवर्स, सो वील नीड 44 आवर्स। अब कितने मैक्सिमम पॉसिबल है बैचेस रन करना? 246। अभी हम डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। एंड देन इफ वी बाय सी, तो ए और बी हम सेल्फ मैन्युफैक्चर करेंगे, सो इट विल बी 28 प्लस 20, दैट इज 48। अब कितने बैचेस बन सकते हैं? 225 एग्जैक्टली। जितनी डिमांड है पूरा हम इधर बना लेंगे, इधर कुछ स्पेयर कैपेसिटी रह जाएगी। दिस वाज आस्क्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस, हमने ये फाइंड कर लिया। सेकेंड, एनालाइज द फाइनेंशियल implication of purchase and advise which components is to be bought, keeping in view the fact that production capacity will be limited to a 50% increase. आपको 50% से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। 50% मतलब 225 बैचेस तक आपके प्रोड्यूस हो जाने चाहिए।
कैपेसिटी इन आवर्स नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि आप कोई एक कंपोनेंट खरीद रहे हो तो ओवरऑल आपके बैचेस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आज तो इतने ही रहेंगे लिमिटेड। अब आपको फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को कंसिडर करके सजेशन देना है, तो हम यहां पर ये देख सकते हैं, ये तो फीजिबल ही नहीं है। ए में तो हमारी 50% से कैपेसिटी बढ़ ही नहीं रही है, बी और सी में कैपेसिटी 50% से बढ़ रही है। अब इनमें से भी विच वन शुड वी ऑप्ट फॉर, इन दोनों में से हमें कौन सा किस पे जाना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए। सो लेट्स कंसिडर बोथ द ऑप्शंस, टू बाय बी एंड टू बाय सी। अगर हम बी सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्ट कितना लगता है, कॉस्ट पर बैच टू मैन्युफैक्चर और टू मेक और प्रोड्यूस। अगर हम बी खुद बनाने जाते हैं तो हमें कितना कॉस्ट लगता है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 108। बी अगर हम खुद बनाते हैं तो कॉस्ट लगता है 108। अगर हम बी खरीद लें तो कितना कॉस्ट लगता है, आपने निकाला है बी का कॉस्ट, इट कॉस्ट यू 150। टू बाय आपका कॉस्ट आता है 150। इसका मतलब खुद बना के आप कितना सेविंग कर सकते हो, सेविंग्स बाय प्रोडक्शन। अगर हम खुद बनाए तो हम 42 रुपीज बचा सकते हैं, बी हम बाहर से खरीदें या खुद बनाए हम 42 रुपीज सेव कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग इट इन हाउस। वैसे ही सी के लिए देखें, अगर सी हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्ट लगता है 116। अगर हम खरीदते हैं तो कॉस्ट कितना लगता है 140। so, यहां पर सेविंग होती है 24 रुपीज पर यूनिट की। हमें की कॉन्स्टेंट को ध्यान में रख के आंसर देना है। हमारा की कॉन्स्टेंट है नंबर ऑफ मशीन आवर्स। एक यूनिट बी का अगर हम मैन्युफैक्चर करें तो कितने घंटे लगते हैं, एक बैच अगर हम बनाए तो बी का एक बैच बनाने के लिए लगते हैं 28 आवर्स। उन 28 आवर्स में अगर आप बी का प्रोडक्शन करते हो बजाय कि खरीदने के, तो यू आर एबल टू सेव 42 रुपीज। इसका मतलब एक घंटा जो आप बी के प्रोडक्शन पे स्पेंड करोगे, आपकी कितनी सेविंग्स होंगी, सेविंग्स पर मशीन आर 1.2, 1.5, 7। अगर हम एक घंटा बी खरीदने की जगह बी मैन्युफैक्चर करने पे देते हैं तो हम 1.5 रुपीज सेव कर सकते हैं। सी में देखें तो सी का एक यूनिट बना के आप सेव कर सकते हो 24 रुपीज। एक यूनिट बनाने में 24 आवर्स ही लगते हैं। सो यू कैन सेव 1 रुपी पर आवर इफ यू स्पेंड इट ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ सी। सी के मैन्युफैक्चर पे अगर आप टाइम दोगे तो आप 1 रुपए बचा सकते हो एक घंटे में, विच इज बेनिफिशियल। लिमिटेड आवर्स है हमारे पास, हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स इन दोनों में से वी विल गो विथ दिस वन। हम कोशिश करेंगे कि हम बी का प्रोडक्शन करें ताकि हम ज्यादा सेव कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट, prepare a profit statement for the period assuming that the component chosen by you is bought out and extra production is made and sold. अभी जो हमने सिलेक्शन किया बी को खरीदेंगे, सॉरी बी को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बी को मैन्युफैक्चर करने से हमें ज्यादा सेविंग हो रही है, बी को खरीदने से नहीं। दिस इज द सेविंग्स ऑन मैन्युफैक्चर, कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज और सेविंग्स ऑन मैन्युफैक्चर। हम बनाएंगे तो ये सेविंग होगी। तो हम जो डिसीजन ले रहे हैं दैट इज वी शुड प्रोड्यूस बी इन हाउस एंड वी शुड बाय सी। हम एक्चुअली ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमने जो कैलकुलेशन किया है दिस इज फॉर प्रोडक्शन और बाय बी और सी।
बी अगर खुद बनाते हो तो इतना कॉस्ट लगता है, बी खरीदते हो तो इतना लगता है, तो आप बना के इतना सेव कर पाते हो, मतलब 1 घंटे में इतना सेव कर रहे हो, विच इज मोर देन वॉट यू आर एबल टू सेव इन when you produce C. So we'll go for production of B. मतलब हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, टू बाय C. अब इस ऑप्शन का हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है. We'll be able to produce all the 225 units, 225 batches. उतने ही हमें बनाने भी हैं. What will be the cost? तो सेलिंग प्राइस पर बैच कुछ दिया है, हाँ 800 रुपीज. क्वांटिटी इज 225 बैचेस. सेलिंग प्राइस पर बैच हमें दिया है 800 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर बैच. वेरिएबल कॉस्ट में है हमारा कंपोनेंट ए का कॉस्ट विच विल बी 64. कंपोनेंट बी ये भी हम खुद ही बना रहे हैं तो इसका कॉस्ट लगेगा 108. कंपोनेंट सी हम खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, और कंपोनेंट सी खरीदने का कॉस्ट लगता है 140 रुपीज. कंपोनेंट डी भी हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, द कॉस्ट विल बी 24. कंपोनेंट ई हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कॉस्ट विल बी 8. ये तो हो गए सारे कंपोनेंट्स के कॉस्ट. इसके अलावा हमें दिया है असेंबली कॉस्ट. पर बैच हम 50 रुपीज असेंबली का इनकर कर रहे हैं. That's it. Variable cost इतने ही है. So we'll have contribution per batch. कितना? 406 multiplied by quantity is 225 batches. So total contribution will be 91,350 minus the fixed cost. Fixed cost हमें दिया है अपोर्शन करके, it is 36 plus 52 plus 64 plus 26 plus 22. ये एब्जॉर्ब हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ 150 बैचेस. 150 बैचेस जब थे तब ये एब्जॉर्प्शन रेट्स आए थे. इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होंगे 150 इंटू दिस मच. और बोला गया है करंट ईयर में ये 10,000 से बढ़ गए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 10,000. These will be the fixed cost for the current year. $40,000. So profit shall be 51,350. Any doubts? इसके बाद question number 52 is your homework. Write this and then read question number 53.